Hello, welcome to the course on microwave engineering. Dear students, in the last video lecture, we have discussed about microwave junction. So basically, microwave junction is nothing but interconnection of two or more microwave devices. We have also discussed about the scattering parameters of two-port network. We have also discussed about properties of scattering parameters. We have also analyzed one of the passive microwave component, which is the E-plenty. Now today we will discuss about two more microwave component. One is the H-plenty and another is EH-plenty, or it is also known as a magic T. So let's start with the H-plenty. So H-plenty is basically T-junction which is formed by attaching a simple waveguide to the rectangular waveguide which has already two ports. तो आप देख सकते हो कि ये मेरा एक rectangular waveguide है, two port rectangular waveguide है. This is the port 1, this is the port 2, and इसके साथ अगर मैं एक side arm attach कर दूँ और एक simple waveguide attach कर दूँ, then it will become a H-plenty. And the two arms of rectangular waveguide, ये rectangular main जो waveguide है उसके दो पोर्ट को हम बोलते हैं कोलिनियर पोर्ट्स, पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2. वाइल ये जो नया पोर्ट हमने अटैच किया है, नया वेवगाइड जो अटैच किया है ये हमारे रेक्टेंगुलर वेवगाइड को, इसको हम बोलते हैं पोर्ट 3 एंड इट इज नोन एज अ साइड आर्म और एच आर्म. वेरी इंपॉर्टेंट, एच आर्म, साइड आर्म और पोर्ट 3. सो दिस इज द 3 पोर्ट डिवाइस, पोर्ट 1, पोर्ट 2 एंड पोर्ट 3. Port 1 and port 2 are known as a collinear ports, where port 3 is known as a side arm or H arm. And this H-plenty is also known as a shunt T because we are connecting this side arm in shunt with the main rectangular waveguide. तो आप देख सकते हो कि हमने ये shunt में कनेक्ट किया है थर्ड पोर्ट को. Hence it is known as a shunt T. It is known as a shunt T. Now why it is called H-plenty? Why it is called H-plenty? So here the axis of side arm is parallel to the magnetic field. Hence this junction is known as a H-plenty junction. Very important. इसको H-plenty क्यों बोलते हैं? Because the axis of side arm, ये axis of side arm जो है that is parallel to H field. आप देख सकते हो. This is the magnetic field H. Okay, and इसके पैरेलल इसकी एक्सिस है, hence it is known as a H-plenty junction, and this is also known as a current junction. Okay, because the magnetic field divides itself into arms. मतलब यहाँ पे जो magnetic field होगी वो यहाँ पे ये जंक्शन में डिवाइड होती है, मतलब यहाँ पे ये दो आर्म में डिवाइड होती है, इसलिए उसको बोला है करंट जंक्शन. Okay, so this is the diagram of the H-plenty and its construction is very simple. Just we have to attach side arm to the rectangular waveguide. Okay, these two ports, port 1 and port 2 are known as a collinear ports, and port 3 that we attach, that is known as a side arm or H arm. Clear hai? Okay, now let's discuss about the properties of this H-plenty, okay, by use of the scattering parameters. So the properties of H-plenty can be defined by scattering matrix of size 3 cross 3 because there are 3 possible input ports and 3 possible output ports. Hence it results in 3 by 3 matrix, which is the square matrix. So the scattering matrix for this H-plenty can be written as S11, S12, S13, S21, S22, S23, S31, S32 and S33. Now let's try to find out the properties of this H-plenty and find out this parameter. So the scattering coefficient S13 and S23 are equal as the junction is symmetric in plane. मतलब S13 and S23 are same as the junction is symmetrical in plane. तो ये दोनों यहाँ पे जो पैरा कोएफिशिएंट है 1 and 3 के बीच का and 2 and 3 के बीच का, that is S13 and S23 are equal. Clear?
one important thing, this port 3 is perfectly matched to this waveguide, so we can write S33 is equal to 0. From the symmetrical property of the scattering matrix, that is Sij is equal to Sji, from this property we can write S12 is equal to S21, S23 is equal to S32 and S13 is equal to S31. You have to remember this relations, that is S13 and S23 are same, so I can write S13 is equal to S23 over here. This is one of the relation. S33 is equal to 0, and this is according to symmetric property. S12 is equal to S21, S23 is equal to S23 and S13 is equal to S31. So using these relations we can write modified scattering matrix as S11, S12, S13. S21 की जगह पे हमने लिख दिया S12 अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, S22, S23 की जगह पे हमने लिख दिया S13 अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, S23 की जगह पे S13 लिख दिया, S31 की जगह पे S13 लिखा एंड S32 की जगह पे मैंने लिखा S13 अगेन बिकॉज S23 इज इक्वल टू S32 है अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी. And according to symmetric property I can write S23 is equal to S32 and S23 already S13 है, so instead of S32 we can write S13 and S33 is perfectly matched, so we can write S33 is equal to 0. So this is the modified scattering matrix of H-plane T. Now from unitary property I can write matrix S multiplied by its complex conjugate is equal to identity matrix, that is I. So this matrix, that is multiplied by its complex conjugate, okay, that is S11 conjugate, S12 conjugate, S13 conjugate, S12 conjugate, S22 conjugate, S13 conjugate, S13 conjugate, S13 conjugate and 0. And this is the identity matrix 1 0 0 0 1 1, sorry 0 1 0 0 0 1. Okay, now try to solve this matrix, that is let's first write relation, multiply this R1 with C1, correct, R1 with C1, so I can write S11 square plus S12 square plus S13 square is equal to 1. Similarly R2 C2, this R2 C2, so according to R2 C2 S12 square plus S22 square plus S13 square is equal to 1, equation number 4. R3C3 can be written as S13 square plus S13 square is equal to 1, and R3C1 can be written as S11 conjugate plus S13 into S12 conjugate is equal to 0. This is the plus, I think so. This is the plus. Okay, so it is equation number 6. Now from equation number 5 we can write 2 times S13 square is equal to 1. So S13 is equal to, this is 1. So S13 can be written as 1 over square root of 2. So from this we have find out the value of S13, that is 1 over square root of 2. Now equating equation number 3 and 4, हम ये दोनों को equate करें तो S13 get cancelled, S12 get cancelled, then S11 is equal to S22, ये एक relation मिल गया, S11 is equal to S12. Now from equation number 6, if I take S13 common, then S11 conjugate plus S12 conjugate is equal to 0. So S13 0 नहीं होता है, okay, so S13 does not 0, so only possible solution is S11 conjugate plus S12 conjugate is equal to 0, and from the I can write S11 conjugate is equal to minus S12 conjugate, hence S11 is equal to minus S12. So S11 is equal to minus S12, correct, or S12 is equal to minus S11 लिख सकते हैं. Now using this in equation number 3, ये जो हमने यहाँ पे S13 की वैल्यू फाइंड की, ओके, और ये जो रिलेशन फाइंड किया उसको इक्वेशन नंबर 3 में यूज करो, तो क्या हो जाएगा S11 स्क्वायर प्लस 1 हाफ इज इक्वल 0. S13 की जगह पे हमने लिख दिया 1/√2 ये इक्वेशन में, एंड S11 इज इक्वल टू S12 है, ओके,
S11 इज इक्वल टू माइनस S12 है, तो ये रिलेशन का यूज करके S11 स्क्वायर प्लस S11 स्क्वायर प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा, ये 1/2 को इस साइड ले लो तो इज इक्वल टू 1/2, सो S11 स्क्वायर 2 टाइम्स S11 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, ओके, तो ये S11 हो जाएगा 1/2, सो S11 की वैल्यू हमें मिल गई 1/2, so S11 is equal to 1/2, S22 is equal to also 1/2 because S11 is equal to S22, so and S12 is equal to minus 1/2 because S11 is equal to minus S12, okay. So from equation 8 and 9 I can conclude that S12 is equal to minus 1/2, correct, because S12 is equal to minus S11 and S22 is equal to 1/2 because S11 is equal to S22, okay. Now substituting all these values, जो हमने S11, S22 और जो अलग अलग को पैरामीटर्स के बीच का जो रिलेशन आइडेंटिफाई किया है उसको मैं इस मैट्रिक्स में रखूँ, ये सब वैल्यू, देन S11 इज इक्वल टू 1/2 जो हमने अभी अभी रिसेंटली फाइंड किया है 1/2, S12 दैट इज माइनस 1/2, S13 दैट इज 1/√2, S13 दैट इज 1/√2, दिस इज again S21 but S21 is equal to S12 है according to symmetric property, so it is minus 1/2, this is S22 that is 1/2, S23 that is S32, S23 that is 1/√2, okay, S23 that is 1/√2 because S23 is equal to S13, S23 and S13 are equal and S13 is equal to 1/√2, so this is also 1/√2, S13 is equal to S31, so S13 1/√2 है तो S31 1/√2 होगा, and this S32 is equal to S23 है तो S23 1/√2 है तो S32 1/√2 होगा, and S33 तो 0 है, so this is a complete S matrix of your H plane T, okay. So after understanding this H plane T and E plane T, now let's move forward towards the another component that is EH plane T. EH plane T, this is also known as a magic T. It is also known as a magic T. Okay, so this is known as a magic T. Okay, and basically नाम से पता चलता है EH plane T मतलब it is a combination of E plane T and H plane T. Okay, it is a combination of E plane T and H plane T. So EH plane T is basically formed by attaching two simple waveguides, one in parallel and one in series to the rectangular waveguide. तो ये पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 वाला जो वेवगाइड है, ये वाला, ये कंटिन्यूअस, ये मेरा रेक्टेंगुलर वेवगाइड है, करेक्ट, ये मेरा रेक्टेंगुलर वेवगाइड है। ये रेक्टेंगुलर वेवगाइड जो है मेरा, उसको सीरीज में एंड शंट में, मतलब सीरीज में एक पोर्ट लगा दिया, बराबर है, तो ये सीरीज में एक पोर्ट लगा दिया और एक शंट में पोर्ट लगा दिया, ये शंट में लगा दिया, पैरेलल एंड सीरीज, तो पैरेलल में जो आ गया वो है एच आर्म एंड सीरीज में ई आर्म है, ओके। सो दिस इज नथिंग बट अवर मैजिक टी, इट इज ऑल्सो नोन एज अ EH प्लेन टी और हाइब्रिड और 3dB कपलर भी उसको बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ हाइब्रिड और 3dB कपलर, ओके। तो आप देख सकते हो कि ये जो इतना पोर्शन जो है, ये ई वाला, ई हम अभी भूल जाओ, पोर्ट 3 को अभी भूल जाओ, तो ये जो प्लेन है हमारा, ये जो टी है वो H प्लेन टी है, और अगर मैं H प्लेन मतलब H आर्म को अभी टाइम बिंग भूल जाओ तो ये मेरी E प्लेन टी है, और E प्लेन मतलब ये कंबाइनली हम बोल सकते हैं कि इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ E प्लेन टी एंड H प्लेन टी, इट इज ऑल्सो नोन एज अ मैजिक टी और हाइब्रिड टी और 3dB कपलर, ओके। सो ये जो मेन रेक्टेंगुलर वेवगाइड है जिसके साथ हमने ये साइड हम अटैच किए, तो मेन रेक्टेंगुलर वेवगाइड के दो पोर्ट को हम बोलेंगे पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 विच आर कोलिनियर, ओके। वाइल पोर्ट 3 दैट इज एच आर्म, दिस इज एच आर्म, एंड इसको सम पोर्ट भी बोलते हैं, इसको सम पोर्ट भी बोलते हैं, सॉरी दिस इज नॉट सम पोर्ट, माई मिस्टेक। सो दिस पोर्ट 3 इज बेसिकली नॉन एज अ साइड आर्म, सो पोर्ट 3 इज नॉन एज एच आर्म, मतलब इसको मैं पोर्ट 4 बोल दूं सपोज, और इसको पोर्ट 3 बोल दूं अकॉर्डिंग टू हियर व्हाट आई रिटन। सो पोर्ट 3 इज बेसिकली एच आर्म और इट इज ऑल्सो नॉन एज अ सम आर्म, नाउ इट्स क्लियर, पोर्ट 3 विच इज एच आर्म और सम आर्म,
और पैरेलल पोर्ट भी बोलते हैं इसको, एंड पोर्ट 4 विच इज द ईएम और डिफरेंस पोर्ट और सीरीज पोर्ट, इसको डिफरेंस पोर्ट बोलते हैं. दिस इज अवर डिफरेंस पोर्ट. ओके. नाउ लेट्स लुक एट द इम्पोर्टेंट द ऑपरेशन ऑफ द EH प्लेन टी. वो कैसे काम करता है, मतलब हम पोर्ट 1 का या सपोज ये पोर्ट 1 पे हम पावर अप्लाई करते तो क्या होगा, पोर्ट 2 पे पावर अप्लाई करते तो क्या होगा, लाइकवाइज. So let's discuss about the operation of the EH plane T. So if signal of equal phase and magnitude is sent to the port 1 and port 2, okay, मतलब port 1 and port 2 पे हम equal phase के और equal magnitude के हम signal apply करें, power apply करें, then output at port 4 is 0. मतलब output at this port 4 is 0, यहाँ पे 0 मिलेगा. एंड आउटपुट एट पोर्ट 3 मतलब एचएम में हमें दोनों का सम मिलेगा, इसीलिए उसको सम पोर्ट बोला है. देखो, और इसको डिफरेंस पोर्ट क्यों बोला है, बिकॉज यहाँ पे पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 पे हम इक्वल फेज इक्वल मैग्नीट्यूड की एनर्जी अप्लाई करें तो पोर्ट 4 पे हमें 0 आउटपुट मिलेगा एंड पोर्ट 3 पे दोनों का सम मिलेगा. ओके, सो दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड. नाउ सेकंड, इफ सिग्नल इज सेंड टू पोर्ट 4, मतलब पोर्ट 4 पे अगर मैं सिग्नल अप्लाई करूं दैट इज EM, देन पावर इज डिवाइडेड बिटवीन पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 इक्वली बट आउट ऑफ फेज. मतलब यहाँ पे जो मैं पावर अप्लाई करूंगा वो पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 में इक्वली डिवाइड होगा, लेकिन वो आउट ऑफ फेज होगा, आउट ऑफ 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा. ओके, एंड देयर वुड नॉट बी एनी पावर एट पोर्ट 3. मतलब पोर्ट 3 एंड पोर्ट 4 आर आइसोलेटेड पोर्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. पोर्ट 4 पे मैं जो एनर्जी अप्लाई कर रहा हूं, मतलब ई प्लेन मतलब EM जो है, EM में अगर मैं एनर्जी अप्लाई करूंगा तो पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 के बीच में इक्वली डिवाइड होगी, लेकिन आउट ऑफ फेज होगी, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज. लेकिन और पोर्ट 4 में से कुछ भी एनर्जी, मतलब सॉरी पोर्ट 3 में से कोई भी एनर्जी हमें नहीं मिलेगी. मतलब यहाँ पे एनर्जी अप्लाई की तो वो यहाँ पे डिवाइड होगी पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 में, पोर्ट 3 से वो 0 हो जाएगी. तो हम लिख सकते हैं कि पोर्ट 3 एंड पोर्ट 4 आर आइसोलेटेड, दैट इज S34 इज इक्वल टू 0. सिमिलरली सपोज मैं पोर्ट 3 पे एनर्जी अप्लाई करूँ तो बट ऑब्वियस पोर्ट 3 पे एनर्जी अप्लाई करूँ तो पोर्ट 4 एंड पोर्ट 3 तो आइसोलेटेड है, मतलब पोर्ट 4 से तो आउटपुट 0 मिलेगा. सो पोर्ट 4 से कोई देयर वुड नॉट बी एनी आउटपुट एट पोर्ट 4. ओके, बट पावर इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 इन फेज. मतलब यहाँ पे जो पावर अप्लाई किया है तो पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 के बीच में इक्वली डिवाइड होगा एंड इन फेज होगा, इन फेज. यहाँ से अप्लाई किया तो आउट ऑफ फेज होता है, यहाँ से अप्लाई किया तो इन फेज होता है, और ये दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है पोर्ट 3 एंड पोर्ट 4. ओके, दैट थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड, एंड अकॉर्डिंग टू दैट पोर्ट 3 S43 इज इक्वल टू ऑल्सो 0. नाउ इफ द सिग्नल इज फेड टू दी वन ऑफ द कोलिनियर पोर्ट, सपोज हम ये पोर्ट 1 को सिग्नल अप्लाई करें, पोर्ट 1 पे सिग्नल अप्लाई करें, देन देयर अपीयर्स नो आउटपुट एट द अदर कोलिनियर पोर्ट. मैजिक, अगर यहाँ पे मैं अप्लाई करूँ एनर्जी तो पोर्ट 2 से कोई पावर नहीं मिलेगा, और पोर्ट 2 से अप्लाई करूँ तो पोर्ट 1 पे कोई पावर नहीं मिलेगा. ओके, सो दैट्स मैजिक. ओके, एस EM प्रोड्यूस फेज डिले एंड HM प्रोड्यूस फेज एडवांस. ओके, ये HM फेज एडवांस प्रोड्यूस करता है और ये फेज डिले प्रोड्यूस करता है, इसकी वजह से यहाँ पे कोई भी पावर हमें नहीं मिलेगा. सिमिलरली यहाँ पे पोर्ट 2 पे अप्लाई किया तो पोर्ट 1 पे कोई पावर नहीं मिलेगा. मतलब पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 आर ऑल्सो आइसोलेटेड पोर्ट. मतलब पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 भी आइसोलेटेड है. इसका मतलब S12 इज इक्वल टू S21 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हमें 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर वैल्यू मिले. S12 इज इक्वल टू S21 इज इक्वल टू 0, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दूसरा पोर्ट 3 एंड पोर्ट 4 आइसोलेटेड है, दैट इज S34 इज इक्वल टू S43 इज इक्वल टू 0. S43 is equal to 0. Clear है? Okay. Now this is the operation of the EH plane T. Now let's describe the properties of EH plane T. So the property of EH plane T can be described by scattering matrix of size 4 cross 4 because उसमें 4 पोर्ट है. Then we have 4 possible input ports and 4 possible output ports. So we have 4 cross 4 matrix
हमें 4x4 मैट्रिक्स मिलेगा एंड द मैट्रिक्स इज गिवन एज S11, S12, S13, S14, S21, S22, S23, S24, S31, S32, S33, S34 and S1, S41, S42, S43 and S44. Okay, now as जो हमारा जो एच प्लेन टी है उसमें एक एच प्लेन टी जंक्शन है, तो इसका यूज करके हम लिख सकते हैं कि S23 इज इक्वल टू S13 एज वी डिस्क्राइब इन दी प्रॉपर्टी ऑफ एच प्लेन टी, दैट इज S23 इज इक्वल टू S13. उसके पास ई एच प्लेन टी सेक्शन भी है, तो हम लिख सकते हैं कि S24 इज इक्वल टू माइनस S14. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ई प्लेन टी, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एच प्लेन टी. S23 इज इक्वल टू S13 एंड S24 इज इक्वल टू माइनस S14. नाउ जैसे हमने आगे भी मेंशन किया यहाँ पे कि ई आर्म एंड एच आर्म जो साइड आर्म है दोनों आइसोलेटेड है. ओके, मतलब एक ई में पावर दिया तो एच में से कुछ नहीं मिलेगा, एच में दिया तो ई में से कुछ नहीं मिलेगा. सो वी कैन राइट S34 इज इक्वल टू S43 इज इक्वल टू 0. ओके, एंड फ्रॉम द सिमेट्री प्रॉपर्टी आई कैन राइट SIG इज इक्वल टू SJI. सो हम लिख सकते हैं कि S12 इज इक्वल टू S21, S23 इज इक्वल टू S32, S13 is equal to S31, S14 is equal to S41, S24 is equal to S42 and S34 is equal to S43. और ये दोनों तो 0 है, करेक्ट. एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, ये पोर्ट 3 एंड पोर्ट 4 दोनों ये रेक्टेंगुलर वेवगाइड को परफेक्टली मैच्ड है. सो हम लिख सकते हैं S33 is equal to 0, S44 is equal to 0 and using all these in this मैट्रिक्स द मॉडिफाइड मैट्रिक्स बिकम, यहाँ पे देखो S33 दैट इज 0, S44 दैट इज 0, तो ये दोनों 0 लिख दो. दूसरा S34 एंड S43, S34 एंड S43 बोथ आर 0, तो ये पूरा जो है वो 0 हो जाएगा. दूसरा हमने यहाँ पे मिला है कि S12 इज इक्वल टू S21, तो S21 की जगह पे S12 लिख दो. S31 इज इक्वल टू S13, S31 इज इक्वल टू S13 बराबर है. S41 इज इक्वल टू S14, S23 इज इक्वल टू S32 है बराबर है. मतलब S23 जो है S32 है, वहाँ पे हम S13 लिखेंगे बिकॉज S23 इज इक्वल टू S13 ऑलरेडी है. S23 इज इक्वल टू S13 है, तो मतलब ये S23 की जगह पे हमने S13 लिखा, तो S23 इज इक्वल टू S13 है, तो S32 इज इक्वल टू भी S13 होगा बिकॉज S23 एंड S32 आर इक्वल है बराबर है, करेक्ट. एंड ये जो S24 है दैट इज इक्वल टू माइनस S14, S24 है दैट इज इक्वल टू माइनस S14, तो यहाँ पे माइनस S14 कर दिया, तो ये आपका मॉडिफाइड स्कैटरिंग मैट्रिक्स है. ओके, अब हम क्या करेंगे कि ये जो जितने भी कंपोनेंट मतलब जो कोएफिशिएंट है एस पैरामीटर है S11, S12, S13, वो सबकी वैल्यू फाइंड करते हैं फ्रॉम द यूनिटरी प्रॉपर्टी. सो फ्रॉम द यूनिटरी प्रॉपर्टी वी कैन राइट द मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज I. ओके, तो ये मेरा जो मैट्रिक्स है उसको उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई कर दे तो ये मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा. ओके, तो ये देख लो कि हमारा मैट्रिक्स है उसको उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला. ओके, अब कुछ रो एंड कॉलम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करते हैं. तो फर्स्ट इज दी R1C1, तो R1C1 किया हमने. ओके, R1C1 किया तो S11 स्क्वायर प्लस S12 स्क्वायर प्लस S13 स्क्वायर प्लस S14 पर यहाँ पे मिस्टेक है, दिस इज कंटिन्यूअस. S14 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, उसको मैंने इक्वेशन नंबर 8 लिख दिया. सिमिलरली R2C2 करें हम, R2C2 करें तो अकॉर्डिंग टू R2C2 S12 स्क्वायर प्लस S22 स्क्वायर प्लस S13 स्क्वायर प्लस S14 स्क्वायर, ये कंटिन्यूअस S14 स्क्वायर है इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 9. फिर R3C3 करें तो ये R3C3 करें तो अकॉर्डिंग टू R3C3 S13 स्क्वायर प्लस S13 स्क्वायर इज इक्वल टू 1. R4C4 करें तो R4 मल्टीप्लाई बाय C4 दैट इज दी मोड S14 स्क्वायर प्लस मोड S14 स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ओके, तो ये S14 स्क्वायर प्लस S14 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया. इसको मैं बोल दूं इक्वेशन नंबर 11. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 10 and 11 we can write
mode of S13 square 2 times mode of S13 square is equal to 1. So S13 is equal to हो जाएगा 1 by root 2 according to this equation number 10. From equation number 11 हम लिख सकते हैं 2 times mode S14 square is equal to 1. So S14 is equal to 1 by root 2 हो जाएगा. Very important. तो S14 की वैल्यू मिल गई, S13 की वैल्यू भी मिल गई यहाँ से. ओके एंड ये दोनों को हम कंपेयर करें, इक्वेशन नंबर 8 एंड 9 को कंपेयर करो, ये दोनों को कंपेयर करें तो ये कैंसल, S13 कैंसल, S12 कैंसल, तो क्या बचेगा S11 स्क्वायर इज इक्वल टू S22 स्क्वायर, दैट इज S11 इज इक्वल टू S22. ओके एंड ये सब वैल्यू जो हमें मिली S13 की, S14 की और ये जो S11 इज इक्वल S22 मिला, उसको मैं ये इक्वेशन में यूज करूँ, 12 एंड 13 की वैल्यू जो मिली है उसको मैं इसमें यूज करूँ इक्वेशन नंबर 8 में, तो क्या हो जाएगा S13 की जगह पे हम लिखेंगे 1 by root 2, तो ये 1 by 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर है, प्लस S14 की वैल्यू 1 by root 2 है तो उसकी वैल्यू 1 by 2 हो जाएगी. S11 को हम S11 रखेंगे और ये हो जाएगा हमारा S12 होल स्क्वायर हो जाएगा, तो S11 स्क्वायर प्लस S12 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, बिकॉज दिस 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 1, सो दिस वन कैंसल, सो वी कैन राइट mod S11 square plus mod S12 square is equal to 0. Now this S12 is basically 0 from this relation that we derived, S12 is equal to 0. Okay, so if S12 is equal to 0, then here this S12 is equal to 0, so I can write S11 whole square is equal to 0, so S11 is equal to 0. And if S11 is equal to 0, then S22 is also 0 according to the equation number 14. So what we got? S11 is equal to S22 is equal to 0. Okay. Now here we have two ports, ports 1 and port 2 are perfectly matched to the junction. Okay, and this is a EH plane T is 4-port junction. So if 2 ports are perfectly matched, then automatically other 2 ports are also perfectly matched to the junction. So in this device, it is a junction where all the 4 ports are perfectly matched, hence it is known as a magic T junction. Okay, and whatever the equation, whatever the value of this parameter that we derived, if we put all this value in this matrix, okay, then the final resultant matrix is S is equal to 0 0 1 by 2 1 by root 2 0 0 1 by 2 minus 1 by root 2 1 by root 2 1 by root 2 0 0 1 by root 2 minus 1 by root 2 0 0, and this is our S matrix for magic T or EH plane T. Okay, so आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया? So in today's class we have discussed about two important microwave component. One is the H plane T and another is EH plane T. EH plane T is also known as a magic T. So I hope कि आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया आपको समझ में आ गया होगा. Let's stop here. We'll discuss other aspect of this course in our next video lecture. Thank you very much.